Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Okay, so as we have seen that in previous lecture, we have already discussed how we can convert our normal logic into FOL, that is first order logic, which is also called predicate logic, or it is also called first order predicate logic. Okay, so when you are, come to this type of terminology, they are all same. Clear? ठीक है. सो अभी इफ जैसे हमने बात की थी कि इफ वी वांट टू इन्फर नॉलेज और रूल्स फ्रॉम नॉर्मल प्रीपोजिशन लॉजिक, then we are having that modus ponens, tollens, hypothetical syllogism, then there are disjunctive rules, conjunctive rules, addition rule, बहुत सारे rules हैं. पर वो rules हम एकदम normal data जो हमारे पास है उससे infer होके आ रहे हैं. ठीक है. Now there are other rules available with the first order logic. We have already seen that we can implement object, we can implement relationship, we can also define functions in the predicate logic. Okay, so predicate logic में हम लोग और ज्यादा सेंटेंस को डिटेल में पोर्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट यू दैट नॉलेज जो इससे आगे जाके हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है. So now whatever the data we are having in first order logic now, so how we can infer new knowledge or rules from this. So there are four types of infer rules we can extract from first order logic, that are universal generalization, universal instantiation, existential instantiation, and existential introduction. So these are the four rules we can apply to infer new logic. Okay, so now we will start with the first one. First is universal generalization. Okay, so what is this universal generalization? So this is one of the infer rule from FOL. If premises P of C is true for any arbitrary element C in the universe of disclosure, then we can have a conclusion as for all x P of X. It means what? If I am having one predicate P of C, if I am having one predicate P of C, okay, and that C, whatever the object C is there or subject C is there, that is true for universe, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? For all x P of X. क्लियर हुआ? पर वो तभी पॉसिबल है व्हेन माय C इज अप्लाई फॉर होल सैंपल स्पेस. क्लियर हुआ सबको? ये तभी अप्लाई होगा. तो इसका मतलब P of C की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल x P of X. और ये कब लिख सकते हैं? व्हेन माय C इज फॉर यूनिवर्स. Okay, so here if I am saying that all birds can fly, ठीक है, तो all birds की बात हो रही है that can fly. ठीक है. और P of C जो है वो मेरे जो है वो birds के बारे में बात हो रही है. ठीक है. If C is the bird, तो P of C is a bird. ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है. तो हम for all bird क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उससे कनेक्टेड जो भी स्टेटमेंट है वो यूनिवर्स के लिए है. और भी सिंपल अगर बात करें तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि अ बाइट कंटेन 8 बिट्स. दिस इज सिंपल प्रपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट एंड यहाँ पे हमने उसको दिया है P of C. इसको क्या दिया है हमने? P of C. तो C क्या है यहाँ पे? ये C किसकी बात हो रही है? बाइट्स की बात हो रही है. ठीक है. तो अगर बाइट्स की बात हो रही है तो वो तो हर यूनिवर्स में कहीं पे भी आप कैलकुलेट करोगे बाइट के अंदर 8 बिट ही होगा. ठीक है. सो नाउ वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर द universe, and that is what the universal generalization. So from one individual statement can we generalize the statement? So yes, we can generalize if it applies generalize or universal rule. ठीक है. तो यहाँ पे universal rule आ रहा है all byte contain 8 bit, so that will be also true. तो यहाँ पे हम इस P of C को हम कैसे लिख सकते हैं? P of C को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? एज अ P of फॉर ऑल x P of X. क्लियर हुआ कि इसको हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया? बिकॉज माई रूल्स जो whatever the rules are there, okay, that is applied for the universe.
जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो पूरे यूनिवर्स को अप्लाई हो रही है, एंड दैट्स व्हाई द सिंपल वन। ठीक है, क्लियर हुआ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। नाउ इससे उल्टा यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन, इसका मतलब कि मेरे पास अगर यूनिवर्स का रूल हो तो वो रूल कोई एक इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एज पर universal instantiation rule we can infer any statement obtained by substituting a ground term for the variable. So what that substituting term is, तो यहाँ पे आ रहा है for all x p of x is given. Okay, that is given. ऊपर का जो भी चीज होगा ना वो डेटा दिया हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है, उसके बेस पे हम नीचे का डेटा कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द इन्फ्रेंस इज। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है, p of c फ्रॉम विच स्टेटमेंट वी आर कंक्लूडिंग, फॉर ऑल x p of x, इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं p of c। अब इससे हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, तो इफ एवरी पर्सन लाइक आइसक्रीम, अगर वो फैक्ट है, ऊपर का जो डेटा है उसको हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, फैक्ट डेटा, ट्रू डेटा। ठीक है, so for all x p of x is true, it means if every person like ice cream, it means what, now we can infer that John like ice cream also। हम इंडिविजुअलिटी पे जा सकते हैं, अभी जनरलाइज स्टेटमेंट से अब हम कौन से स्टेटमेंट में जा रहे हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट से अब कौन से स्टेटमेंट में जा रहे हैं हम लोग, अब हम जा रहे हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट। क्लियर आया, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन एंड यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन ये कह रहा है कि अगर P of C स्टेटमेंट ट्रू है और C कैन बी अप्लाइड फॉर द यूनिवर्स, then we can say that for all x p of c, मतलब वो हम यूनिवर्स के लिए for all x के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा हमने कहा देखा, यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन। क्लियर, कोई डाउट है इसके अंदर? इसमें हमने ये देखा कि जनरलाइज स्टेटमेंट अगर सबके लिए इम्प्लीकेबल इम्प्लीमेंट हो सकती है तो किसी एक पर्सन के लिए हो ही सकती है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी हम बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस इज दिस। नाउ द थर्ड इज एक्सेंशियल इंस्टेंटिएशन। अभी हमने बात की थी कि ये किसके लिए है, इंडिविजुअल चीज के लिए है। जब हम इंस्टेंटिएशन की बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन में क्या हुआ था, फॉर ऑल से हम एक पर्सन पे आ गए, है ना, कि एवरी पर्सन लाइक आइसक्रीम, तो हम जॉन पे आ गए, जॉन लाइक आइसक्रीम ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, फॉर सम एक्स p ऑफ x। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर एक रूल, एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सम फॉर देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x, यहाँ पे ये इसको क्या बोला जाता है, देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x, तो हम p ऑफ c कब बोल सकते हैं, ये तो किसी के लिए भी, किसी एक के लिए ही है और सब डोमेन के लिए है। ठीक है, दिस इज नॉट अप्लाई टू ऑल द सैंपल स्पेस, दिस इज फॉर नॉट ऑल द सैंपल स्पेस, राइट। यहाँ पे तो सम सैंपल स्पेस की, सब सैंपल स्पेस की बात हो रही है, फॉर सम। क्लियर, तो ये जो x है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही सेट ऑफ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। नाउ इन दैट केस, अगर हमारे पास एक डेटा ऐसा है कि फॉर सम कंट्री x, अगर कोई कंट्री x है, ठीक है, और उसका क्राउन, ठीक है, वो क्राउन किसी जॉन के हेड पे है। ठीक है, यहाँ पे जॉन क्या है, जॉन ऑन हेड एक्स, मींस ये कंट्री का क्राउन किसके हेड पे है, जॉन के हेड पे है। ठीक है, तो ये कंट्री कौन है, क्राउन ऑफ एक्स। ठीक है, तो सम कंट्री क्राउन ऑफ एक्स है हमारे उसके पास, और वो क्राउन किसके ऊपर है, किसके हेड के ऊपर है, जॉन के ऊपर है। ठीक है, सो ये जो एक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं तो, और ये डेटा हमारे पास फॉर सम के हिसाब से है, दिस इज नॉट फॉर ऑल। ओके, सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल एक्स, अगर हमें उसको कोई पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसको कुछ नया वेरिएबल इन्फर करके देना है, देन इट शुड नॉट कम
अर्लियर, पहले ये डेटा आना नहीं चाहिए, ये वेरिएबल पहले किसी और के लिए यूज नहीं होना चाहिए। समझ में आया ये? ठीक है, बिकॉज हम अब एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। के का मतलब हो सकता है मे बी हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, उसका जो भी क्राउन है, और वो क्राउन किसके हेड पे है? जॉन के हेड पे। समझ में आया? तो वो जो ब्रिटेन वर्ड है वो कहीं और पहले नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? सो के डज नॉट अपीयर इन द नॉलेज बेस्ड अर्लियर। ठीक है, तो वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे उसके क्राउन की बात हो रही है, तो वो किसी कहीं और उसके बारे में नॉलेज बेस पे बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? फॉर सम से हम लोग एक इंडिविजुअलिटी पे आ गए। ठीक है, कि के मीन्स सम कंट्री, लेट्स से ब्रिटेन। ठीक है, उसके ऊपर आ गए। तो यहाँ पे वापस से हम सब स्पेस और सैंपल स्पेस में से कोई एक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे आ गए। समझ में आया सबको ये? ठीक है, देन आफ्टर एक्सेंशियल इंट्रोडक्शन, ये क्या चीज है? दिस रूल स्टेट दैट इफ देयर इज सम एलिमेंट सी इन द यूनिवर्स of disclosure which has a property p, then we can infer that there exists something in the universe which has the property p. Of course, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि p of c है वो true है, इसका मतलब कि there is some value x which is having property x. ठीक है ना? तो ये बात कर ही सकते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल है प्रियंका गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, सो ये एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की है एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, जैसे मैंने बात की थी कि ऊपर जो भी लिखा है आपके ऊपर जो भी लिखा है उसमें वो जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू स्टेटमेंट दैट वी रिक्वायर टू कंसिडर एज ए ट्रू। Okay, so P of C is true statement and the statement is what? Priyanka got good marks in English. Clear? हाँ, अब यहाँ पे अगर हम प्रियंका के बारे में ऐसा बोल सकते हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि therefore someone got good marks in English. someone में हमको ऐसा थोड़ी ना है कि एक है या एक से ज्यादा हो सकता है, पर वो पूरा सैंपल स्पेस नहीं हो सकता। दैट्स इट। ठीक है ना? पूरा सैंपल स्पेस होगा तो वो यूनिवर्स में आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये? सो नाउ फ्रॉम वन इंडिविजुअलिटी से हम लोग कहां पे जा रहे हैं? फॉर सम। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सो these are the four inference rule we can derive from whatever data we are having in the knowledge base. Clear everyone? Any confusion in this? पहले कौन सा देखा हमने? Universal generalization, then universal instantiation, then exponential instantiation and exponential इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, सो दिस आर द फोर रूल्स। नाउ एनकोड जनरल नॉलेज ऑफ द डोमेन। ठीक है, सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट्स से एनीवन पासिंग द एआई एग्जाम एंड विनिंग द लॉटरी इज हैप्पी। क्या है यहाँ पे हमारे पास? सेंटेंस है एनीवन पासिंग the AI exams and winning the lottery is happy. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पूरे डोमेन की बात हो रही है कि सब डोमेन की बात हो रही है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल लॉ और एक्सेंशियल लॉ। यस, एनीवन? हाँ, which law we are talking about here? Yes, anyone? फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं कि फॉर देयर एग्जिस्ट सम डेटा के लिए बात कर रहे हैं? नम्रता, वेरी गुड शुभम, निशा। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी, वेरी गुड शैफुल्ला, तो जो भी एआई एग्जाम पास करेगा और लॉटरी विन करेगा वो हैप्पी होगा। सभी जो डोमेन में है उनकी बात हो रही है। सो फॉर ऑल विल कम इन द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ओके। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने आपको प्रेडिकेट्स दिख रहे हैं। यस, सी, अभी जब हम प्रेडिकेट्स की बात कर रहे हैं तो प्रेडिकेट्स में क्या होता है कि रिलेशन होता है, और रिलेशन को हम एज ए प्रेडिकेट क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और उसके फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ p ऑफ x,
जैसे मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है P ऑफ X, ठीक है। सो P ऑफ X क्या है? सो P इज माई प्रेडिकेट, समझ में आया, एंड X इज माई सब्जेक्ट। समझ में आया? और टू प्लेस प्रेडिकेट कल हमने बात की थी, P ऑफ X कॉमा Y। टू प्लेस प्रेडिकेट कब यूज करते हैं हम लोग? यस नम्रता, वेरी गुड। सो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी बात हो रही है कि जिसमें रिलेशन निकल के बाहर आ रहा है, कुछ रिलेशन है सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। सो दैट टाइम वी आर यूजिंग व्हाट? वी आर यूजिंग टू प्लेस प्रेडिकेट्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं यूट्यूब पे। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, इसके बाद आपको खुद से करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। सो एग्जांपल है, जैसे हमने बात की थी कि फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे क्यों आया फॉर ऑल एक्स? बिकॉज ये पूरे डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि एक्स इज व्हाट? एक्स क्या है यहाँ पे? यस एनीवन? हाँ, द पर्सन, वो पर्सन की बात हो रही है ना। वेरी गुड गौरव। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, ओके। एक्स इज अ पर्सन एंड एक्स इज पासिंग द एआई एग्जाम। तो पास क्या हो रहा है? रिलेशन। वो पर्सन और एग्जाम के बीच में रिलेशन है पासिंग, एआई सब एग्जाम का पासिंग। तो प्रेडिकेट मेरा क्या बन जाएगा? दैट रिलेशन, पास। एंड दिस इज टू प्लेस प्रेडिकेट एक्स कॉमा एआई। क्लियर हुआ सबको? एंड यहाँ पे एंड ऑपरेशन है, एंड विनिंग द लॉटरी। अब ये लॉटरी कौन विन कर रहा है? वही पर्सन, वापस हम वही पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट पर्सन एक्स कॉमा लॉटरी, और रिलेशन क्या है लॉटरी और एक्स के बीच में? विनिंग। सो विनिंग इज माई रिलेशन एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम माई प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एज अ प्रेडिकेट, ठीक है। क्लियर हुआ? और अगर वो एग्जाम में पास होता है एंड वो लॉटरी विन करता है तो वो हैप्पी है, तो वो हैप्पी है, तो हैप्पी है, तो उसके लिए क्या लगेगा? इम्प्लीकेशन, ठीक है। सिंगल इम्प्लीकेशन लगेगा, यहाँ पे इंप्लाइज होता है। और इंप्लाइज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? हैप्पी। कौन हैप्पी है अभी? वो पर्सन, ठीक है। समझ में आया सबको? ये स्टेटमेंट समझ में आया कैसे बना है? नाउ वी हैव कन्वर्टेड द सिंपल स्टेटमेंट इनटू FOI format, that is first order logic. Clear हुआ? So now we go for the another statement. Any student who studies or is lucky can pass all his exam. ठीक है। क्या है स्टेटमेंट? एनी स्टूडेंट हु स्टडीज और इज लकी कैन पास ऑल दिस एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? वेदर दिस इज यूनिवर्सल लॉ और एग्जेंशियल लॉ, ठीक है। तो क्या आएगा ये? दिस इज फॉर सम स्टूडेंट्स और फॉर ओनली फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड निशा, गौरव, सैफुल्ला, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम पूरे स्टूडेंट डोमेन की बात कर रहे हैं, एनी स्टूडेंट। समझ में आया? सो वेरी गुड। तो यहाँ पे फॉर ऑल लगेगा। फिर हम लोग किस पे जाएंगे अभी? तो हम इस पे जाएंगे कि अब कौन से प्रेडिकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पूरे सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें क्या आ रहा है सबसे पहले कि जो स्टूडेंट, अब पर्सन की जगह पे क्या बन गया है? स्टूडेंट। सो एक्स इज अ स्टूडेंट, ओके। हु स्टडीज, तो एक्स जो स्टडी कर रहा है, और एक्स जो लकी है वो एग्जाम में पास। फॉर ऑल एक्स, स्टडी एक्स और लकी एक्स, पास ऑफ एक्स। यहां पे एग्जाम का कीवर्ड्स आया नहीं है आपका? गौरव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो डोमेन है। पहला डोमेन है स्टूडेंट्स और दूसरा डोमेन है एग्जाम, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट की बात हो रही है और एग्जाम की बात हो रही है। अगर वो स्टूडेंट है
और वो एग्जाम में अपीयर हो रहा है तो वो स्टडी करेगा और लकी है तो पास होगा। समझ में आया? हाँ, वेरी गुड अखिलेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें वो स्टूडेंट है और वो एग्जाम में बैठेगा तो ही ये सारा प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो देर आर एक्स इज अ स्टूडेंट एंड वाई एग्जाम है, ठीक है, और वो दोनों ही चीजें अगर हो रही हैं तो फिर वो स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट अकेला लकी है, ठीक है, तो वो एग्जाम में पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट और एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम कीवर्ड जो है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ these things are very very important if we are going for forward और backward chaining, क्योंकि उसी के बेस पे हमारे कंक्लूजन आएंगे अगर हमारा FOIL करेक्ट होगा। Anyone who is lucky wins the race, wins the lottery, ठीक है। ओके, एक्स की जगह पे पर्सन आएगा, सही सही है तुम्हारा, पर यहाँ पे आपका जो लॉटरी है वो पिक्चर में नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे विन जो है वो रिलेशन है, ठीक है, और वो विन क्या कर रहा है, पर्सन, एक्स इज अ पर्सन, राइट, एक्स पर्सन है, ठीक है, और वो लॉटरी को विन कर रहा है, करेक्ट, वो लकी है फॉर ऑल एक्स, एक्स इज अ पर्सन, अगर फॉर ऑल एक्स अगर वो लकी है तो वो विन कर रहा है, क्या विन कर रहा है, वो एक्स पर्सन लॉटरी को विन कर रहा है, ठीक है। लॉटरी इज नॉट रिलेशन, इट्स अ सब्जेक्ट, वीनिंग इज द रिलेशन। समझ में आया? वीनिंग यहाँ पे रिलेशन होगा, क्लियर? हाँ, समझ में आया अखिलेश, निशा, ठीक है। आपको कैसे देखना है यहाँ पे कि अच्छा ये जो मुझे अभी क्वेश्चन मिला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से रिलेशन है, वो रिलेशन को प्रेडिकेट बनाना है, सब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर लिखना है। अगर वो आपको नॉर्मल सब प्रेडिकेट्स और सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे, पर अगर रिलेशन में मिल रहा है तो डबल है कि ट्रिपल भी हो सकता है, हम ट्रिपल वाले भी देखेंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। सो दैट वे वी विल डू। अभी हम लोग एक और बड़ा सेंटेंस देखेंगे, उसमें और क्लियर होगा थोड़ा, ठीक है। नाउ there are two things we are having to go to the conclusion. The one is forward chaining and another one is backward chaining. Okay, so forward chaining क्या है? Forward chaining also known as forward deduction or forward reasoning method when using an inference engine. Okay, inference engine means यहाँ पे अगेन हम लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये मेरा गोल है और वो गोल तक पहुंचने के लिए इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना होगा, आपको हर स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना होगा और आप गोल तक पहुंचोगे, ठीक है। और उसके लिए बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमने इन्फ्रेंस रूल अभी तक सीखे हैं वो सारे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो whenever we are doing we are proofing any sentence, तो वो अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग से कर रहे हैं, सो दैट टाइम वी विल स्टार्ट विथ एटॉमिक सेंटेंसेस. Now what is this atomic sentence? Atomic sentence means that sentence is not having any implies स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी implies वाली चीज नहीं होनी चाहिए, डबल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम गोल तक पहुंचेंगे, ठीक है। So we will start with what? Atomic sentence in the knowledge base and apply inference rule in the forward direction to extract more data until goal is reached. Clear, everyone? So algorithm start from known fact to unknown, you can say. ठीक है? So this process, ये process repeat होता जाएगा जब तक कि हमें गोल नहीं मिलता। अब ये फॉरवर्ड चेनिंग की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ डाउन अप अप्रोच, और यू कैन से बॉटम अप अप्रोच भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए इसको डाउन अप अप्रोच भी बोल सकते हैं। ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन नॉन फैक्ट और डेटा बाय स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड रीच द गोल स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेटा
अवेलेबल होता है, इसलिए इसको डेटा ड्रिवन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा ड्रिवन एज वी रीच टू द गोल यूजिंग अवेलेबल डेटा। जो भी डेटा हमारे पास है उसके थ्रू हम जाते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज कॉमनली यूज इन द एक्सपर्ट सिस्टम, लाइक एक्सपर्ट सिस्टम कौन सी है? एक्सपर्ट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है क्लिप सॉफ्टवेयर, जो एक्सपर्ट सिस्टम, जनरलाइज एक्सपर्ट सिस्टम है, जिसमें हम कोई भी डोमेन का एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन बिजनेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम, ये सारी जो इंटेलिजेंट सिस्टम है उसके अंदर फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच का यूज होता है, ठीक है। नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे वो समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज दिस फॉरवर्ड चेनिंग। सो कंसिडर द एग्जाम्पल। जब भी आप कोई भी बुक खोलोगे, कोई भी पीपीटी इसकी डाउनलोड करोगे, कहाँ पे भी देखोगे तो आपको फॉरवर्ड चेनिंग का यही एग्जाम्पल मिलेगा। इवन मैंने जो आपको बुक सेंड किया है वो बुक में भी आपको ये डिटेल में ये वाला एग्जाम्पल मिलेगा। द क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल क्या है? एज पर द लॉ it is a crime for an American to sell weapons to enemy of America, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर अमेरिकन सेल करता है वेपन उसकी एनिमी कंट्री को, जो अमेरिका की एनिमी है, ठीक है, तो वो क्राइम कहलाता है। नाउ कंट्री नोनो, एक कंट्री है जिसका नाम है नोनो, एंड एनिमी ऑफ अमेरिका, वो क्या है? अमेरिका की एनिमी है। हैज सम मिसाइल्स, तो मिसाइल्स कहाँ पे आता है, कौन से डोमेन में आता है? वेपन के डोमेन में। तो उसके पास कुछ मिसाइल है, एंड ऑल द मिसाइल्स वेर सोल्ड टू इट बाय कॉलोनल वेस्ट, ठीक है। और वो सारे मिसाइल्स जो है वो कंट्री नोनो को किसने बेचा है? तो कॉलोनल वेस्ट ने बेचा है। और वो कॉलोनल वेस्ट कौन है? द कॉलोनल वेस्ट इज एन अमेरिकन सिटीजन, ठीक है। देन प्रूव दैट कॉलोनल वेस्ट इज क्रिमिनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर अमेरिकन एनिमी कंट्रीज को, जो भी अमेरिका की एनिमी है उसको अगर वेपन सेल करता है तो वो क्या है? वो एक क्राइम है, और जो कर रहा है वो क्रिमिनल है, ठीक है। द सेम वे यहाँ पे कॉलोनल वेस्ट इज अमेरिकन एंड द कॉलोनल वेस्ट इज selling weapon to country no which is enemy of America, and that's why colonel west is criminal। ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे? अब ये स्टेटमेंट तो क्या है, अगर हम यहाँ पे लॉजिकली देखो, दिमाग में समझेंगे तो हम तो समझेंगे कि ये प्रूव है, ये तो बता ही रहा है ना कि प्रूव है, पर मशीन उसको कैसे समझेगा कि ये स्टेटमेंट में ये ट्रू आता है कि नहीं, ठीक है। तो मशीन क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कौन सा है? जो अभी हमने देखा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे ये पैराग्राफ को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी एटॉमिक सेंटेंस मिलते हैं उसको लेंगे, जो कंबाइंड सेंटेंस है उसको भी लेंगे, ठीक है, जो प्रूव करना है उसको भी लेंगे। सो एवरीथिंग वी विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब लोग, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एज पर द लॉ इट इज अ क्राइम फॉर अमेरिकन टू सेल वेपन टू एनिमी ऑफ अमेरिका, ठीक है। पहला सेंटेंस लिया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लॉ की बात हो रही है, ये पहला सेंटेंस है, उसी को हम सिर्फ करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। इन्फर क्या करना है? अभी पहला वाला सेंटेंस है उसी को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? इट इज अ क्राइम फॉर अमेरिकन टू सेल वेपन टू एनिमी ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे मोटा मोटा आपको क्या दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक अमेरिकन की बात हो रही है, पर्सन एक्स इज अमेरिकन, हाँ, एक वेपन की बात हो रही है, कुछ वाई वेपन की बात हो रही है, ठीक है, कुछ जेड एनिमी की भी बात हो रही है यहाँ पे, हाँ, और वहां पे एक रिलेशन है सेलिंग करने का, उसी की भी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या बना रहे हैं? इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड वी आर टेकिंग पी क्यू आर, ठीक है। सो पी क्यू आर के फॉर्म में यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, पी इज एन अमेरिकन, तो एक अमेरिकन भी है
एंड क्यू वेपन भी है, एंड क्यू वेपन पी अमेरिकन आर एनिमी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. दिस इज थ्री प्लेस प्रेडिकेट. थ्री प्लेस प्रेडिकेट कैसे आया, क्योंकि पी अमेरिकन जो है, ठीक है, वो क्यू वेपन्स आर एनिमी को सेल कर रहे हैं. समझ में आया, ठीक है. तो ये भी आपका एक प्रेडिकेट है. एंड एनिमी आर, यहां पे बात हुई रही ना कि एनिमी टू एनिमी ऑफ अमेरिका, ठीक है. और अगर वो एनिमी आर अमेरिका का एनिमी है, ठीक है, तो फिर इंप्लाइज वो क्रिमिनल है. समझा सबको? फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया? एनी प्रॉब्लम विद द फर्स्ट स्टेटमेंट? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो लॉजिकल स्टेटमेंट है विद कंक्लूजन, वो अगर प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है तो बाकी के ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है. ये एग्जाम में इस तरीके से कोई नया प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. यू रिक्वायर टू राइट थियोरी ओनली, बट ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को, फॉरवर्ड चेनिंग को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अच्छा, फैक्ट समझ में आया सबको कि अमेरिका सो फैक्ट समझ में आया. अमेरिकन, वो अमेरिकन है पर्सन, क्यू वेपन्स है, वो अमेरिकन क्यू वेपन्स आर एनिमी को सेल कर रहा है, एंड वो अमेरिका का एनिमी है, तो वो क्रिमिनल है. समझ में आया, ठीक है. वो पहला सेंटेंस बोल रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस. क्लियर? नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज कंट्री नो नो an enemy of America has some missile. Country no no and वो क्या है, enemy of America has some missile, ठीक है. सो यहां पे has की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, owns, ठीक है. सो ये कंट्री कौन सी है, नो नो इज हैविंग सम मिसाइल, ठीक है. समझ में आया? और वो वेपन की बात हो रही है ना, पहले हमने इसको वेपन बोला हुआ है, और वो वेपन ही क्या है, मिसाइल है, ठीक है. तो उसका भी एक हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा कि वेपन और मिसाइल सेम है. समझ में आया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ओन्स, नो ओन्स व्हाट, पी, दैट इज मिसाइल, और वो मिसाइल पी मतलब कि वो वेपन है, ठीक है. तो वो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक इन मॉडस पोनेन P एंड Q, तो P भी फैक्ट है और Q भी फैक्ट है. अगर P एंड Q दो स्टेटमेंट फैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो उसको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं कि नो नो ओन्स P एंड वो वेपन, नो नो ओन्स क्या है, वेपन, एंड वो वेपन क्या है, मिसाइल, ठीक है. तो ये दोनों चीजें हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं. हम डायरेक्ट वेपन से मिसाइल पे नहीं पहुंच सकते, पहले वेपन और मिसाइल का क्या करना पड़ेगा, हमें वो रिलेशन भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि फॉर ऑल पी, अगर उसके पास मिसाइल है, और वो मिसाइल किसके पास है, कंट्री नोनो के पास है, और तो वो सेल कर रहा है किसको सेल कर रहा है, वो कॉलोनल वेस्ट ने सेल किया है ना, ठीक है. यहाँ पे वापस पढ़ते हैं, कंट्री नो नो एन एनिमी ऑफ अमेरिका हैज सम मिसाइल्स एंड ऑल मिसाइल्स वेर सोल्ड टू इट बाय, किसने मिसाइल्स को सेल किया है, कॉलोनल वेस्ट ने. तो वो सेल किसने किया है, कॉलोनल वेस्ट ने पी मिसाइल को कंट्री नो नो जो है उसको सेल किया हुआ. समझ में आया? अब यहाँ पे हमने ये ही ऑर्डर क्यों रखा है, वो रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो एक जनरलाइज सेल आ चुका है पहले, और उस सेल में हम बात कर रहे थे पी अमेरिकन, तो वो अमेरिकन कौन है, कॉलोनल वेस्ट. क्यू वेपन्स, वो वेपन क्या है, पी मिसाइल, एंड आर क्या है, दैट एनिमी कंट्री, और वो कंट्री कौन सी है, नो नो. समझ में आया सबको? तो आप, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जनरलाइज से और
स्पेशलाइज की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? जैसे जैसे सेंटेंस सबको मिल रहा है, ठीक है। देन as I told you, we required to give one relation between the missile and weapon also, ठीक है। तो मिसाइल P tends to weapon P, ठीक है ना। तो ये बताना पड़ेगा कि भाई जो मिसाइल है वही वेपन है, जो वो मिसाइल है तो वो वेपन है, ठीक है। देन आफ्टर we are having one more atomic sentence that is called enemy, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कंट्री नो एन एनिमी ऑफ अमेरिका, उसको भी तो हमें निकालना पड़ेगा अलग से। सो एनिमी ऑफ अमेरिका, तो कंट्री नो एनिमी ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द प्रेडिकेट। और इसको हमने इस तरीके से क्यों लिया है? बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग दिस ऑर्डर वेर आर इज माई एनिमी कंट्री ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए नो यहाँ पे आए, ठीक है। वहां पे लास्ट में बोला गया है हु इज एन अमेरिकन सिटीजन, कौन? कॉलोनल वेस्ट। सो इसके लिए हमने एक और एटॉमिक सेंटेंस बनाया, दैट इज अमेरिकन ऑफ अमेरिकन कौन है? कॉलोनल वेस्ट। क्लियर हुआ? सो ये सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। नाउ ये सब जो हमने बनाया उसमें जितना भी लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा फैक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो जितना भी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो मेरे फैक्ट वैल्यूज है। इसमें से भी 4 चीजें ऐसी हैं जो एटॉमिक सेंटेंस है जहां से हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना है। एटॉमिक सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसके पास सिर्फ एक ही रिलेशन होगा। ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो सारा क्या है? एटॉमिक सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हम एटॉमिक सेंटेंस से काम करेंगे। सबसे पहले तो फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो आपके एटॉमिक स्टेटमेंट्स है वो लिखेंगे हम लोग। सो मेरे एटॉमिक स्टेटमेंट है अमेरिकन ऑफ वेस्ट, अमेरिकन ऑफ वेस्ट, ठीक है। देन एनिमी, मिसाइल एंड ओन, तो ये सारे हो गए एनिमी, मिसाइल एंड ओन, ठीक है। एनिमी, मिसाइल, ओन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एटॉमिक, ठीक है। नाउ वी विल सी द रिलेशन। तो रिलेशन कैसे मिल रहा है हमको? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेट्स से मिसाइल, ठीक है। तो इज मिसाइल इज कनेक्टेड विद समवन? यस, मिसाइल इज कनेक्टेड विद समवन, दैट इज वेपन, ठीक है। अगर वो मिसाइल है तो वो क्या है? वेपन है, ठीक है। तो हम इसको और ऊपर एक ड्रॉ कर सकते हैं वेपन, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। ये वेपन कैसे आया? सो मिसाइल टेंड्स टू वेपन। क्लियर हुआ? अब हमारे पास और क्या है इसके अंदर? इन्फ्रेंस रूल, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास और क्या है? मिसाइल है, ओन्स नो, ठीक है। तो वो सेल कौन कर रहा है? कॉलोनल। किसको कर रहा है? कंट्री नो को। ये मिसाइल पी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये दोनों को मिलाकर कंक्लूजन ये आ रहा है, सेल। समझ में आया? मिसाइल एंड ओन्स, नो ओन्स मिसाइल, ठीक है ना। कंट्री नो ओन्स मिसाइल, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर क्या आ रहा है? ये सेंटेंस आ रहा है सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों को मिलाकर ये आया है सेंटेंस। सेल कौन कर रहा है? तो सेलिंग कॉलोनल वेस्ट टू नो कंट्री दिस मिसाइल और वेपन, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ सेंटेंस जो भी आपके कॉम्बिनेशन वाले मिल रहे हैं उसको ही ज्वाइन करते जाना है, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है। अब हम जाएंगे वापस आगे। ये हमारा हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी एटॉमिक सेंटेंस हमने यूज कर लिया है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ये यूज कर लिए। अब हम आते हैं मेन सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। सो नाउ दिस इन दिस मेन सेंटेंस वी आर हैविंग 4 प्रेडिकेट्स, अमेरिकन, वेपन, सेल, एनिमी, और उससे बनता है क्रिमिनल, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है। अमेरिकन, weapon, cell, enemy, and this will go for the criminal colonial west. Clear? So now from initial state we reach to our goal.
because based on this data we require to go to our conclusion that Colonel West is a criminal. क्लियर हुआ सबको ये? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग, जहां पे हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचते हैं. यस, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ स्टूडेंट्स? इन्फ्रेंस का समरी. इन्फ्रेंस कौन से इन्फ्रेंस का? इन्फ्रेंस मीन्स यू आर कंक्लूडिंग समथिंग. ओके, सो कंक्लूजन मीन्स बेस्ड ऑन अवेलेबल नॉलेज. सो अवेलेबल नॉलेज कौन सा है? जो फैक्ट आपको दिया हुआ है. तो जैसे ये आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो दिस इज द फैक्ट दैट इज गिवन. Okay, so all the sentence, whatever the sentence are there and whatever the FOL we are generating from that sentence, all are correct, true statement. Okay, and based on that you require to prove this sentence Colonel West is criminal. तो आपको इन्फ्रेंस करना है. इन्फ्रेंस करना मतलब कंक्लूड करना. तो यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए अभी के लिए आपको कोई लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है. ठीक है, आप ऐसे ही इसको कंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज वी आर हैविंग सो मेनी लॉज अवेलेबल. ठीक है ना. अभी ये वाले में हमने सिर्फ मॉडस पोनल लॉ जो है वही लगाया, जिसमें क्या होता है, P एंड Q है. सो P इज ऑल्सो इंडिविजुअल फैक्ट एंड Q इज ऑल्सो इंडिविजुअल फैक्ट. बिकॉज अगर आप सोचो कि P एंड Q दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ? P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तभी तो दोनों ट्रू हुआ ना, एंड ऑपरेशन. ठीक है, तो इसको इंडिविजुअली हम लोग लिख सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज द ओनली लॉ वी हैव यूज्ड अप टिल नाउ. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब उसका उल्टा है बैकवर्ड चेनिंग. उसका उल्टा. ठीक है, सो बैकवर्ड चेनिंग इज नोन एज बैकवर्ड डिडक्शन और बैकवर्ड रीजनिंग मेथड व्हेन यूजिंग एन इन्फ्रेंस इंजन. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम गोल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम नीचे तक पहुंचेंगे. ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो कवर हो जाना चाहिए. सो इन बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग विच स्टार्ट विद द गोल एंड वर्क बैकवर्ड चेनिंग थ्रू रूल्स टू फाइंड नोन फैक्ट दैट सपोर्ट द गोल. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पहले गोल का फोकस है और उसके बेस पे हमारे पास बाकी सारे फैक्ट्स जो है वो आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा. प्रॉपर्टीज क्या है बैकवर्ड चेनिंग की? प्रॉपर्टी, सो इट इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच. ओके, जनरली हियर आल्सो वी आर यूजिंग मॉडस पोनल रूल्स. द गोल इज व्हाट? It's broken down into sub goal and sub goal to prove the fact that is true statement. ठीक है, it is called a goal driven approach. उसको ये भी बोलते हैं. ठीक है, वो कहाँ पे यूज होता है? तो गेम थियरी, ऑटोमेटेड थियरी, जहाँ पे रूल्स प्रूव करना होता है, इन्फ्रेंस इंजन, प्रूफ असिस्टेंट, ये सारी जो एआई सिस्टम है उसमें ये यूज होता है. ठीक है, सो दिस इज यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी फॉर द प्रूफिंग. ठीक है, तो ये कैसे सब होता है वो हम देखते हैं पहले. तो अगेन आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा कि वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो हम सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं. एज पर द लॉ इट इज crime for an American to sell weapons to enemy of America, which is also called hostile country. No, an enemy of America has some missile and all the missiles were sold to it by Colonel West, who is an American citizen. So prove that Colonel West is criminal. हमने वापस से वो सभी को क्या कर दिया है, यहाँ पे डेपिक कर दिया, पूरा FOL वापस बनाया इसका. ठीक है, इस FOL में एक यहाँ पे चीज था कि एनिमी ऑफ अमेरिका जो है उसको हॉस्टाइल भी बोलते हैं. तो सेम वे मैंने एक और यहाँ पे क्या बनाया है, FOL, एनिमी ऑफ अमेरिका. ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? हॉस्टाइल. ठीक है, तो दैट इज योर, दिस आर ऑल योर FOL. ठीक है, अभी एज पर द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड चेनिंग वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? गोल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहां से शुरू करना है? क्रिमिनल वेस्ट. ठीक है, क्रिमिनल कौन है? कॉलोनल वेस्ट. कॉलोनल वेस्ट जो है वो क्रिमिनल है, वहां से शुरू करना है, बिकॉज दिस इज माय कंक्लूजन स्टेटमेंट. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, तो कंक्लूजन स्टेटमेंट से शुरू करेंगे. सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? वेस्ट की जगह पर, कॉलोनल वेस्ट की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? एक्स. ठीक है, बिकॉज
जब हम गोल से इनिशियल स्टेट पे जाएंगे तो हम एकदम स्पेशलाइजेशन की तरह जगह पे हम जनरलाइजेशन पे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट एंटिटी जो हमने डेपिक्ट किया है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को लेंगे। तो हमने बात किया था ना दो चीज, इक्वालिटी एंड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक्स डिवाइड बाई वेस्ट। इसका मतलब नाउ व्हेनेवर कॉलोनल वेस्ट की बात होगी, क्रिमिनल की बात होगी, तो हम एक्स से उसको क्या करेंगे, डेपिक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये क्रिमिनल वेस्ट, तो वो कौन है, तो क्रिमिनल वेस्ट की हिस्ट्री देखेंगे हम लोग। तो क्रिमिनल वेस्ट अमेरिकन है, उसने सेल किया है। हम नीचे वाला देख रहे हैं, ऊपर वाले पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। हम नीचे वाला देख रहे हैं कि वो सबसे पहले तो वो अमेरिकन सिटीजन है, उसने मिसाइल्स जो है वो सेल किए हैं किसको, एनिमी ऑफ अमेरिका, ठीक है। और इसीलिए एनिमी ऑफ अमेरिका के पास क्या है, मिसाइल है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस पे पहुंचे हम लोग। तो ये सारे सेंटेंस पे कैसे पहुंचेंगे, तो अभी हमारे पास ये सेंटेंस कहां से आए, अमेरिकन, वेपन, सेल एंड हॉस्टाइल मीन्स एनिमी ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो अमेरिकन ऑफ एक्स, एक्स कौन है, कॉलोनल। वेपन यहां पे है, ठीक है। क्रिमिनल के पास क्या है, वेपन, वेपन को हमने वाई से डेपिक्ट किया। क्रिमिनल एक्स ने वाई वेपन को जेड एनिमी को सेल किया है, और वो जेड एनिमी कौन है, जिसको क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल, ठीक है। सो ये क्रिमिनल ऑफ कॉलोनल से हम डेपिक्ट, ये नॉलेज जो है वो डेपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या डेपिक्ट कर सकते हैं, सो उसके बाद अब हमारे पास वेपन है। तो वेपन का रिलेशन है यहाँ पे, वेपन का मतलब होता है, आपके पास वेपन का मतलब है मिसाइल। हम उल्टा जा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं, पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल भी हो गया, हॉस्टाइल भी हो गया, वेपन्स भी हो गया, पर वेपन्स जो है अभी क्या है, मिसाइल, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, मिसाइल, वेपन की जगह पे अब हम लिखेंगे मिसाइल, ठीक है। तो वेपन इज मिसाइल। क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है। अब हमारे पास और कुछ है डालने के लिए यहाँ पे, ठीक है। मिसाइल को अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एमएल से, M1 से, ठीक है। M1 से सब्स्टिट्यूट किया, फिर सेल के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, तो सेल के लिए हमारे पास रिलेशन है, तो वो हम चेक करेंगे, इज देयर एनी रिलेशन फॉर सेल। तो सेल के लिए रिलेशन है ओन्स एंड मिसाइल। क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, समझ आ रहा है ना सबको, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने क्रिमिनल देखा, क्रिमिनल के नीचे सेल, हॉस्टाइल, वेपन, वो सब देखा। फिर वेपन के अंडर में मिसाइल, सेल के अंडर में ये दोनों, और हॉस्टाइल के अंदर एनिमी, ये तीन चीजें देख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। सो इसके अंदर में ये दोनों, और हॉस्टाइल के अंदर में एनिमी। समझ में आया सबको, ये क्लियर हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर टू गिव द नॉलेज बेस के, क्या हमारे पास जितने नॉलेज बेस में इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे डेपिक्ट किया, यस हमने सारी चीज यहाँ पे डेपिक्ट की। सो नाउ वी कैन से दैट कॉलोनल इज अ क्रिमिनल, क्योंकि जितना भी नॉलेज बेस पे इंफॉर्मेशन था वो यहाँ पे सब कुछ डेपिक्ट हुआ है। क्लियर हुआ। पहले हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे, यहाँ बैकवर्ड चेनिंग में हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गए। क्लियर हुआ, ठीक है। So this is what backward chaining, which we can start with the goal and then we will reach to initial statement. Clear? So this is what the difference between backward and forward chaining. Yeah, any question up till now, students? Yeah, कोई question है students? ओके, सो दीज आर द सैंपल क्वेश्चंस। मैंने सारे ही क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कट पेस्ट किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि एज इट इज वो क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। कंपेयर मॉडल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, डिफाइन एआई एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। पीस डिस्क्रिप्शन क्या है वैक्यूम क्लीनर के लिए, ड्राइवरलेस कार,
ठीक है, प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, बट दिस इज नॉट फ्रॉम एमसीए क्वेश्चन पेपर, ये बी कंप्यूटर साइंस का AIML का सब्जेक्ट है, उसकी क्वेश्चन पेपर है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें से आएगा कि नहीं, ठीक है। Which one is more preferable, backward or forward? Yes, very good question, Sonia. Whenever we are talking about expert system, which is useful to generate any AI system, तो हम forward ही use करते हैं. Very good, Janisha. Forward chaining जो है वो कोई भी expert AI system है उसके लिए use होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंक्लूजन लाना है तो बैकवर्ड चेनिंग इज ओके, बट अगर आपको फुल प्रूफ कंक्लूजन चाहिए तो फॉरवर्ड चेनिंग, हमारे पास जो डेटा है उससे अगर हम गोल पे पहुंचेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए इस डोमेन में जो भी ज्यादातर जो यूज होता है वो फॉरवर्ड चेनिंग होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, जैसे हमें अभी हमने बात की थी हाउ टू कन्वर्ट सेंटेंस इनटू FOL, तो उसके भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस so that you come to know how we can do this. We already know the conclusion in backward, so what is the need of getting the facts? Okay, so we know the conclusion, but that conclusion is correct or not, that we are proving over here, ठीक है। हमें conclusion मिल चुका है, not necessary all the time you come to the conclusion कि ये conclusion correct ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि कंक्लूजन प्रूव किया है और वो प्रूव भी हो गया, जरूरी तो नहीं है कि प्रूव होना ही चाहिए, ठीक है। सो कंक्लूजन जो भी आपको दिया हुआ है वो आपका जो भी गिवन फैक्ट्स है उससे वो कंक्लूजन मिल ही रहा है कि नहीं, वो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इन बैकवर्ड चेनिंग व्हाट हैपन समटाइम्स, यू आर हैविंग दैट गोल कि हमें यहाँ पे रीच करना है विथ, और उसके हिसाब से आपने वो फैक्ट्स प्रूव करते गए आप, बराबर है। तो यहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, बायस हो जाता है कि मुझे जब गोल पता है तो मैं नीचे ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, सेटलमेंट, ठीक है, वो भी होता है काफी टाइम बैकवर्ड चेनिंग में। पर फॉरवर्ड चेनिंग में वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो अवेलेबल डेटा है उसी से काम करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन, ओके। Yeah, any questions, students? Thank you, everyone.